آج کا وہ دن امپورٹنٹ دن ہے، بجائے اس کے کہ آپ فضول کاموں میں فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں آپ ضائع کریں، آج کے دن کچھ ڈکلیریشن جو ہیں اپنے آنے والے سال پر کر لیں۔ یہ آورز آپ کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو آج کا مارننگ کا جو میرا میسیج ہے وہ یہ ہے، ہیئر دا ورڈ آف دا لارڈ 2024، ہیئر دا ورڈ آف دا لارڈ 2024 خداوند کے کلام کو سن۔ کیا ٹائٹل ہے میرا؟ 2024 خداوند کے کلام کو سن۔ خداوند کے کلام کو سن۔ اچھی بات میں تگڑے 2024 خداوند کے کلام کو سن۔ خداوند کے کلام کو سن۔ 2024 خداوند کے کلام کو سن۔ خداوند کے کلام کو سن۔ 2024 2024 hear the word of the Lord۔ کیا ہے؟ اور اردو میں کیا ہے؟ آمین۔ ریڈی ہے میرے ساتھ؟ آج کا ریڈنگ والا ہے، اپنی اپنی بائبل لے لیں، اگر نہیں ہے تو وہ ڈائس سے لے لیں جن کو پڑھنی آتی ہے۔ آج کا کلام ہے، یہ آیتیں نوٹ کرنے والی ہیں، 2024 پر ڈکلیئر کرنے والی ہیں۔ جب آپ اپنے 2024 پر یہ آیتیں ڈکلیئر کریں گے، آپ کا 2024 کا جو سفر ہے وہ بابرکت ہوگا۔ Sit down and never go down. Sit over your enemies. سال کا آخری سنڈے ہے اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں، بڑا اچھا سفر رہا اور خداوند اس سفر میں ہمیں یہاں تک لے کر آیا ہے۔ بڑے حادثوں سے بچایا، بڑی وباؤں سے بچایا، بڑی بیماریوں سے بچایا، بڑے حملوں سے بچایا، اور ہماری ضرورتیں اس نے الہی خزانے سے پوری کی۔ ہم اس کا شکر کرتے ہیں، بولے تھینک یو جیسس۔ تو اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، خدا نے مجھے آج کی مارننگ سروس کے لیے میسیج کیا ہے کہ 2024 خداوند کے کلام کو سن۔ ہاللیلویا۔ ہم پڑھیں گے حوالہ پاسٹر عظمیٰ کے ساتھ پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب 1 سے 5 تک۔ پیدائش اس کا پہلا باب 1 سے 5 تک، سلو پڑھیے گا۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا، اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ آمین۔ ادھر دیکھیے گا، خدا نے ہر چیز بنائی، خداوند نے ہر چیز کو کوئی کیمیکل یوز نہیں کیا۔ جیسے جب مستری ہیں وہ گھر بناتے ہیں، انہیں اینٹیں چاہیے ہوتی ہیں، انہیں گارا چاہیے ہوتا ہے، انہیں سیمنٹ چاہیے ہوتا ہے، انہیں ریت چاہیے ہوتی ہے، وہ بہت ساری چیزیں لے کر بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں۔ پر خدا جب بنا رہا ہے وہ کوئی مٹیریل یوز نہیں کر رہا۔ کہ کر رہا ہے کوئی یوز؟ کوئی گارا، کوئی اینٹ، کوئی مٹی، کوئی خون، کچھ یوز کر رہا ہے؟ کوئی ہڈیاں، کوئی گوشت، کچھ بھی خدا یوز نہیں کر رہا۔ جب خدا چیزیں بنا رہا ہے ایک بلڈر کی طرح، جب وہ اس دنیا کو، ایک کائنات کو ایک مستری کی طرح بنا رہا، خود ہی مزدور بھی وہ خود ہے، مستری بھی وہ خود ہے، اور وہ خود ہی چیزیں بنا رہا ہے اور کوئی مٹیریل استعمال نہیں کر رہا۔ جب بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں بغیر مٹیریل کے، بغیر کوئی چیز یوز کیے، اسے کریشن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کریشن۔ کریشن کا، تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بنائی جائے اور کوئی مٹیریل بھی استعمال نہ ہو۔ لیکن خدا جب ہمیں بنا رہا ہے، کریٹ کر رہا ہے، کائنات کریٹ کر رہا ہے، تو خدا اپنے ورڈ کو یوز کر رہا ہے۔
کس کو یوز کر رہا ہے؟ اپنے ورڈ کو. تو ہر چیز خدا نے جو بنائی ہے، ہفتے، دن، مہینے، سورج، چاند، ستارے، چرند، پرند، درند، سب کچھ، تو اس نے اپنا ورڈ استعمال کیا. اپنا ورڈ. کتنوں کو سمجھ آ رہی؟ تو آپ بھی خدا کی شبیہ پر بنے. میں دوبارہ کچھ پرانی چیزیں بھی ریکال کروا رہا ہوں جو میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ فنڈامنٹل سیکھ لیں گے روحانی دنیا کے، آپ کی زندگی میں کبھی کمی نہیں ہوگی. فنڈامنٹلز تو ہم پڑھیں گے اس کی 26 اور 27ویں آیت، اسی کی پہلا باب اس کی 26 اور 27 آیت. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں، آمین. اور آسمان. یہاں پر رکے پہلے، اگلی آیت پڑھیں. اس پہلے خدا نے آپ کو اپنی شبیہ پر بنایا. آپ کو بنانے سے پہلے آپ کی ضرورتیں بنائی. آپ کو بنانے سے پہلے آپ کا گھر بنایا. آپ کو بنانے سے پہلے آپ کی جاب، آپ کا بزنس بنایا. آپ کو بنانے سے پہلے آپ کی کار بنائی ہے، جو چیزیں آپ کو چاہیے. تو خدا نے آدم اور حوا کو کریٹ کرنے سے پہلے وہ لذیذ پھل، وہ کھانے، وہ خوبصورت جگہ ان کے لیے تیار کی ہے جس میں ان کو رہنا تھا. تو اسی طرح اس دنیا میں آنے سے پہلے خدا نے آپ کی برکتیں آپ کے لیے تیار کی ہیں. بولے آمین. خدا ان ماں باپ کی طرح کا پلانر نہیں ہے جو بچے پیدا کر لے کر بعد میں پریشان ہوتے ہیں انہیں پڑھانا کیسے، ان کی شادی کیسے کرنی، ان کو پالنا ہے. نہیں، خدا ماسٹر پلانر ہے. ہم جب اس کے بیٹے اور بیٹی ہیں، جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارے آنے سے پہلے اس نے ہماری برکتیں ڈیزائن کی ہیں. آپ ان برکتوں کو ریسیو کرنے والے ہیں. آپ ان برکتوں کو ریسیو کرنے والے ہیں. آمین کے بعد بیماروں والی ہے. پھر یہاں پر سیکھنے کی بات کیا ہے؟ 2 باتیں. ایک میں نے بتا دی ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کی برکتیں بنائی گئی ہیں. حاصل کیسے ہوں گی؟ جب آپ خدا سے الائن ہوں گے، جب آپ اپنی اکڑ میں رہیں گے اس دنیا میں اور اپنی عقل پر چلیں گے، ارد گرد کے لوگوں کی عقل پر چلیں گے. امی ابو نے کہا کہ ڈاکٹر بن جاؤ، ڈاکٹر بن گئے. امی ابو نے کہا جی پاسٹر بن جاؤ، پاسٹر بن گئے. امی ابو نے کہا جی سیاستدان بن جاؤ، سیاستدان بن گئے. آپ کبھی بلیس نہیں ہو سکتے. ہاللیلویہ. میں اپنی چھوٹی سی مثال دوں. میرے ماں باپ چاہتے تھے میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں، MBA کے بعد CA کروں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. ایون میری ڈیزائر تھی کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں، میں کسی بڑی کمپنی کا GM میں جنرل مینیجر بنوں، GM بنوں. یہ میری اپنی ڈیزائر تھی، ملٹی نیشنل کمپنی کا. پر خدا مجھے ادھر نہیں چاہتا. تو جب میں نے خدا کی آواز سنی، کسی نے مجھے جب ٹیچ نہیں کیا، کسی نے مجھے سکھایا نہیں. ایک عام گھرانے میں پیدا ہوا اور میں چھت پر اکیلا بیٹھتا تھا، مجھے آوازیں آتی تھی اور میں سمجھتا تھا کہ کوئی یہ چیزیں ہیں، باہر کی چیزیں ہیں، کوئی شیطانی چیزیں ہیں. کنٹینیوس آوازیں آتی تھی. وہ بولتا تھا، مجھے بتاتا تھا یہ اور وہ چیزیں ہو جاتی تھی. تو پھر میں نے جب اس پہ سرچ شروع کی تو پتہ چلا کہ وہ کوئی شیطان نہیں ہے، کوئی ابلیس نہیں، کوئی بدروے نہیں، خداوند خدا ہے. تو خدا نے کال کیا ہے، خدا نے بلایا ہے. اور جب میں نے اپنی زندگی اس سے لائن کی ہے، آپ چونٹی کی طرح کام کریں گے، آپ ہاتھی کی طرح سیلیبریٹ کریں گے. سکسیس لوگوں سے نہیں ہے، سکسیس خدا سے جڑنے سے ہے. یہ نہیں کہ ایک پادری کے پاس 10 لاکھ لوگ ہو تو وہ کامیاب ہے. نہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس نے روحیں بچانی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں بچانی، روحیں بچانی ہے زیادہ سے زیادہ. میرا بھی ٹارگٹ اسٹیڈیم ہے یسوع کے نام سے. آمین. پر کامیابی بیساکھیوں سے نہیں ہے، کامیابی لوگوں سے نہیں ہے، کامیابی پاک روح سے کنیکٹ ہونے سے ہے. وہ آپ کو ایک راستہ بتا دے گا، یہ کرو، فنش، اور اس کے بعد آپ بلیس ہیں. ہاللیلویہ. تو کیونکہ برکت اور بلیسنگ خدا سے کنیکٹ ہونے سے ہے، لوگوں سے کنیکٹ ہونے سے نہیں. کس سے؟ خدا سے کنیکٹ. تو جو برکتیں اس نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے، آپ کے ایون ماں باپ کے ملنے سے پہلے اس نے تیار کی ہیں، کیونکہ آپ روحانی عالم میں، اسپرٹ ریلم میں، آپ کریشن میں، ورلڈ دنیا، آپ کریشن کی ڈائمینشن میں جب خدا کے ساتھ تھے، آپ روح کی شکل میں،
آلریڈی میچور انسان تھے. خدا نے آپ کو جب فارمیشن میں لے کر گیا ہے, ماں کے بدن میں تخلیق کیا ہے, تو آپ بیبی تھے پر اسپرٹ اندر میچور تھے. ہاللیلویہ. اصل میں جو ہم سیکھتے ہیں, بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی سول میچور ہوتی ہے, ان کا مائنڈ میچور ہوتا ہے, تاکہ وہ جو روح اندر ہے آلریڈی میچور ہے اس کے ساتھ الائن کر سکے, اور اس کے ساتھ الائن کر کے خدا کی روح سے جڑ سکے. جب آپ کا دماغ بڑا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, میچور ہوتا ہے, کلام سے, علم سے, دنیاوی علم سے اور خدا کی روح سے جڑتا ہے, اور آپ اپنا مقصد جانتے ہیں, تب آپ لیس ہوتے ہیں. اور پھر آج کے کلام کے متعلق اس میں سے تیسرا مکاشفہ کیا ہے, وہ یہ ہے اسی آیت میں کہ خدا نے آپ کو اپنی شبیہ پر بنایا. خدا نے چیزیں تخلیق کی ہیں بول کے, آپ چیزیں کام کر کے تخلیق نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کام نہیں کرنا, پر جب مجھے یہ مسٹری سمجھ آئی میں شوق ہو گیا. کام کرنا ہے بعد میں, پہلے بولنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ کام کر رہے ہیں, آپ اس کے بعد بول رہے ہیں, وہ نیگیٹو بول رہے ہیں, آپ ایون اپنے کیے ہوئے کام کو برباد کر رہے ہیں. تو خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے. خدا بولنے والا ہے, اور وہ ایسا بولنے والا ہے, وہ بول کے دنیا تخلیق کر رہا ہے. تو آپ بول کے اپنی دنیا تخلیق کر سکتے ہیں. تالیوں کے بعد مارو والی ہے. ہاللیلویہ. تو آج کا جو دن ہے اور آج کی جسٹ یہ صبح کی سروس, ہم اپنے آنے والے 24 کو تخلیق کرنے ہیں. آپ اپنے 24 کو تک کنٹرول کر سکتے ہیں. آج آپ کی تقدیر کسی جادو ٹونے والے نے نہیں کی, نہ وہ کر سکتے ہیں. آپ کی تقدیر آپ خود لکھتے ہیں اپنی زبان سے. خدا نے آپ کو اتنی اتھارٹی دی ہے, اس سے بڑی کیا بات ہے. اس نے آپ کو اپنی شبیہ پر بنایا اور آپ اپنی زبان سے اس چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں. اپنی زبان کو ویری ویری سینسٹیو طریقے سے استعمال کریں. ہاللیلویہ. بولے میں خداوند کی شبیہ پر ہوں. خدا نے دنیا تخلیق کی اپنے الفاظوں سے. میں اپنی دنیا تخلیق کر سکتا ہوں اپنے الفاظوں سے. ہاللیلویہ. خداوند نے مجھے پیدا کیا, اور میرے پیدا کرنے سے پہلے جو چیزیں مجھے چاہیے آلریڈی پیدا کی. جب میں خدا سے کنیکٹ ہوں گا, جو چیزیں اس نے میرے لیے تیار کی ہیں میں وہ حاصل کر سکتا ہوں. کتنے ایمان رکھتے ہیں؟ آپ بولیں 2024 خداوند کے کلام کو سن. چند گھنٹوں بعد کیلنڈر چینج ہونے والا ہے, اور چینج اگلا سال ان کے لیے ہوگا جو خود چینج ہو. ورنہ کیلنڈر ہی چینج ہوتا ہے, حالات نہیں چینج ہوتے. جب آپ چینج ہوں گے اگلا سال چینج ہوگا. اور سب سے بڑھ کر آپ کے چینج کے ساتھ آپ کے الفاظ چینج ہو, آپ کی سوچ چینج ہو, پھر برکتیں. اگر آپ 2023 میں کنفیوز ہیں اور اگلے سال بھی کنفیوز ہیں, جو پیسہ آپ اپنے لیے اور بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں خدا اس سے خوش ہوتا ہے. پر آپ جب خدا کے لیے سب سے پہلے اور لوگوں کی مدد کے لیے جو پیسہ آپ دیتے ہیں, خدا اسے سیڈ کنسیڈر کرتا ہے, اسے بیج کنسیڈر کرتا ہے, اسے خدا سیکریفائس کنسیڈر کرتا ہے. جو آپ کھا گے وہ سیکریفائس نہیں ہے. جو آپ نے خدا کے کام کے لیے دیا یا لوگوں کی مدد کے لیے دیا, خدا اسے سیڈ یا سیکریفائس کنسیڈر کرتا ہے آپ کی اماؤنٹ کو دیکھ کر. ہاللیلویہ. کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو بیج آپ نے 2023 میں بوئے ہیں 24 میں اس کی فصل کاٹے. آمین. وہ نہ بولے جنہوں نے نہیں بوئے. جنہوں نے بوئے ہیں کچھ نہیں, وہ کیا کاٹیں گے؟ وہ دعا کریں کہ ہمیں توفیق دے ہم بھی بوئیں. اگر آپ نے لوگوں کی ہیلپ کی ہے, آپ نے خدا کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے خدا کی کنگڈم میں,
समझे आपने बीज बोया, अपनी फसल के लिए रेडी हो जाए। कितनों ने किंगडम के लिए बोया? हालेलुया, वाह, तालियां जा रहे हैं। हमने जुलाई के प्रोग्राम में जी, जुलाई के प्रोग्राम में अपना घर खुदा के लिए दे दिया। खुदा मुझे बहुत बड़ा घर देने वाला है, और जिन लोगों ने जो चीज बोई है उससे दुगनी खुदावन देने वाला है। सुलेमान को उसने कहा तूने मुझे 60 हाथ का महल दिया है, मैं तुझे 120 हाथ, तूने मुझे 60 हाथ का घर दिया है, मैं तुझे 120 हाथ का महल दूंगा। तो खुदावन जो आपने दिया है नाप नाप के गिट्ठों के साथ, उससे दुगना आपको देने वाला है। और सबसे बरकत की बात क्या है, खुदा की जो नापने वाली गिट्ठे हैं वो आपकी हाथ से बड़ी है। आपका हाथ छोटा सा है, आपने अपने हाथ के हिसाब से मिसाल के तौर पर 60 फुट का घर या जगह खुदा के लिए दी है। खुदा जब गिट्ठे नापेगा उसके 120 गिट्ठे कितनी बड़ी है। हालेलुया। लिखा है जमीन पर जितने बादशाह थे सुलेमान सबसे ज्यादा अमीर। किस लिए? क्योंकि खुदा ने जब अपनी गिट्ठे नाप कर उसको वापस किया, वो उसकी सोच से भी बड़ा। खुदावंद ऐसा ही कुछ आपके लिए करने वाला है। हालेलुया। तो ऊंची हर बात पर आपने बोलना है। जब मैं आपको मौका दूं बोलना है 2024 खुदा के कलाम को सुनो। ऊंची बात बोले। तो आज की सुबह की सर्विस के कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ गई कि हम खुदा ने दुनिया किससे बनाई है? अपने अल्फाजों से, और मैंने अपनी दुनिया अपने अल्फाजों से बनाई। क्यों? क्योंकि मैं खुदा की शबीह पर जो मैं बोलूंगा फरिश्ते मानेंगे। हालेलुया। फरिश्ते हर बात की नहीं मानेंगे, सिर्फ उस शख्स की मानेंगे जो निजात याफ्ता है। अबरानियों में चलेंगे, अबरानियों 1:14 पढ़े। ये खिदमत गुजार हुए ईमान लाने वालों की खिदमत के लिए। किसके लिए? जो सिर्फ साल्वेशन के अंदर है। तो अपने साथ वाले को पूछें, आर यू सेव्ड? पूछ ले लेफ्ट राइट, आर यू सेव्ड? बोले आर यू बैप्टाइज्ड? बोले क्या आप यीशु पर ईमान रखते हैं? क्या आप निजात याफ्ता हैं? नहीं, जो निजात के मेरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं। यानी वो सर्वेंट्स खड़े हुए हैं एंजल मेरी हजूरी में। मुझे पता है रात को हम किसी पर्पस के लिए, मैं मेरी वाइफ दुआ कर रहे थे 4 बजे उठ के, खुदा ने मुझे मेरे रैंक दिखाए। मैंने इससे पहले अपने शोल्डर नहीं देखे, रैम ऑफ द स्पिरिट में मैंने अपने शोल्डर देखे, और वहां मैंने अपने बैचेस देखे, जैसे आर्मी जनरल्स के कंधों पर बैच होते हैं। और मैंने अपने कद से बहुत बड़ा देखा, और मैं देख रहा हूँ 4 मेरे इस तरफ, 4 मेरे इस तरफ एंजल हैं, और मैंने उनका मैं तुम्हें रिलीज करता हूँ। हालेलुया। खुदा आपकी आंखें भी खोले यीशु के नाम। खुदा आपकी आईज भी ओपन करे यीशु के नाम। तो ऑलरेडी कलाम पर आपका डीप ईमान होना चाहिए कि जो इसमें लिखा है वो झूठ नहीं। अगर इसमें लिखा है कि खिदमत गुजार नौकर मिले, अगर आप कंगले हैं, जेब में पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, पर जब आपने तौबा की है सच्ची और बपतिस्मा लिया यीशु का, तो सोच लें आपके लेफ्ट राइट नौकर खड़े हुए हैं। वो कौन है? खुदा के एंजल है। कौन है? इसलिए मैं अपने कलाम की तरफ जाने से पहले आपको बेसिक्स बता रहा हूं, ताकि जब हम फ्लो में हो आप रिलीज करें ईमान से। और मैं कह रहा हूं कि आप अपने 2024 को क्रिएट करने वाले हैं। मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूं, खुदा ने दुनिया किससे बनाई है? अपने। तो आपने दुनिया अपने अल्फाजों से बनानी है। क्यों अपने अल्फाजों से? क्योंकि खुदा स्पीकिंग बीइंग्स है, खुदा बोलने वाली मखलूक है, हस्ती है जो बोलती है और चीजें वजूद आती हैं। तो हम भी उसकी शबीह पर हैं, हम जो बोलेंगे वो चीजें वजूद में हैं। कॉन्फिडेंस से बोले, ईमान से बोले। अय्यूब 22:28 में लिखा है, यू विल डिक्री द थिंग्स एंड आई विल एस्टैब्लिश। तू चीजें कहेगा और मैं उसे कर दूंगा।
हालेलुया। यशायाह में लिखा है, मैं अपने खातम की मसलहत को कायम करता हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनों को समझ आ रही है? और अब हम कलाम की तरफ डीपली चलने वाले हैं। मैं ऑलमोस्ट 24 प्रॉमिसेस लेकर आया हूँ जो हम 2024 पर डिक्लेयर करने वाले हैं। मुझे पता है कि मेरा 2024 जब मैं वो वर्ड बोलूंगा उसमें एंटर होंगे और वो ब्यूटीफुल होगा। कितनों का मेरे साथ ईमान है? तो इसलिए खुदा ने मुझे आज के लास्ट डे में, मैंने सबसे पहले जो लेट आए हैं उनके लिए मैं दोबारा रिकॉल करवा दूं, मैंने डाकू की मिसाल दी। आज का दिन, आज का एक एक घंटा, एक एक लम्हा इतना इंपॉर्टेंट है। आप भी उन नकम्मे स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल पे ले, वो सारा साल पढ़ाई नहीं करते, सारा साल नहीं पढ़ते, खेलना, दीवारें फैलान के स्कूल से चले जाना, स्कूल से भागना, गेम में खेलना, वीडियो गेम में, गुड्डे वाली गेम में, दौड़े, क्रिकेट, फिट्टू गरम, पता नहीं क्या क्या करते हैं बच्चे। पर इसी तरह लड़कियां भी सारा साल नहीं पढ़ते, पर आखिरी महीने वो किताबों में घुस जाते हैं और वो पास करते हैं। हालेलुया। सारा साल नहीं पढ़ते, लास्ट मंथ में वो अपनी डेस्टिनी चेंज कर देते हैं। डाकू बाइबल में सारी जिंदगी उसने चोरियां की, डकैतियां की, सलीब पर लटका हुआ है। लास्ट लम्हे उसने यीशु पर यकीन रख दिया। यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त होगा। जो लोग आज की सुबह की सर्विस में आए हैं, मार्क माय वर्ड ऑन द स्टाम्प पेपर, अगर आप आज के दिन को सीरियस लेंगे और ईमान से कुछ चीजें बोलेंगे, मैं आपको कह रहा हूं स्टाम्प पर लिख ले, मैं गारंटी देता हूं अपनी, जो वर्ड आप बोलेंगे दिसंबर के ठीक अगले 31 में हम मिलेंगे, आप कहेंगे पास साहब जो आपने बताया आपको चीजें पूरी हो। के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। हालेलुया। तो उस डाकू की तरह जो कहेंगे खुदा ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा, तो आज ही जो आप वर्ड बोलेंगे, लास्ट आवर्स, लास्ट लम्हात में आपका टेबल चेंज होने वाला है, आपकी स्टोरी चेंज होने वाली है, आपकी डायमेंशन चेंज होने वाली है। आज का टाइम फजूल व्हाट्सएप पर इधर उधर लट्सप इधर ना दे, डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें। रात को हम प्रेयर करें। हालेलुया। अभी कुछ प्रॉमिसेस है वो हम डिक्लेयर करेंगे, रात को हम प्रेयर करेंगे और खुदा उनके बदल से कैलेंडर चेंज होगा और आपकी लाइफ भी चेंज होगी। हालेलुया। I feel an anointing is here. Holy Spirit is here. आमीन। तो डिक्लेयर करें क्या है 2024। बाइबल में लिखा है घास सूख जाएगी, फूल कमला जाएंगे, पर खुदावन का कलाम अब तक। शेर के बच्चे भूखे और हाजतमंद रह सकते हैं, पर खुदावन के कालम किसी नेमत के मुताज ना होंगे। आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। जो बातें मैं बोलने वाला हूँ वो मेरे मुंह की बातें नहीं, वो खुदा के कलाम की और खुदा के मुंह की बातें हैं। तो वही आप अपने अपने, मेरे नहीं, आप अपने, मैं अपने लिए खड़ा हूँ, आज मैं अपने लिए खड़ा हूँ। आई एम सेल्फिश टुडे, पर मैं एक जगह आपके लिए हेल्पफुल हूँ कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। हालेलुया। मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके लिए हेल्पफुल हूँ। मैं अपने पर बोलूंगा, आप अपने पर बोलेंगे। अगर आपने आज देखा रहा, आपका मुंह बंद रहा, फिर समझ लें मैं नहीं कह सकता आपका ईयर 2024 ब्लेसफुल हो। आमीन। रेडी हैं? स्टार्ट करें। ओके, हम स्टार्ट करेंगे। यशायाह 40 निकालेंगे। यशायाह 40 29 से 31 देखेंगे। यशायाह 40 29 से 31 देखेंगे। वो थके हुए को जोर बख्शता है और नौजवान की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मादा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले असरे नौजोर हासिल करेंगे। वो उकाबों के माने बाल वापस से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मादा ना होंगे। आमीन। आमीन। यहाँ आपके लिए प्रॉमिस है। स्लो स्लो पढ़ें, स्लो स्लो पढ़ें। लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले, किसका इंतजार करने वाले? तो खुदावन, खुदा का जब आप वेट करेंगे, किसी कार का वेट नहीं, बस का वेट नहीं, ट्रेन का वेट नहीं, फ्लाइट का वेट नहीं,
किसी बंदे का वेट नहीं, किसका? खुदावंद का। जब आप वेट करेंगे, उसका वेट ऐसे नहीं होता जैसे आप ट्रेन का वेट कर रहे हैं, मैं खुदा का इंतजार कर रहा हूं, मैंने मौजूद नहीं, ऐसे नहीं इंतजार। खुदा का इंतजार ऐसे है कि जब आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी मैरिज के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, आप खुदा के हुजूर टाइम स्पेंड करते हैं, प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं, बाइबल रीडिंग करते हैं, इसको वेटिंग कहते हैं। ये वेटिंग वो नहीं है कि आप ट्रेन पर बैठे हुए चाय मंगा ली, कभी बोतल मंगा ली, टाइम देखा, इधर घूम लिया, उधर घूम लिया, ट्रेन नहीं आई मेरा फ्लाइट नहीं आई अभी, नहीं, ये वो वेट नहीं है। ये वेट है कि जब खुदा का इंतजार है, जब आप सारे नेटवर्क ऑफ कर देते हैं, कंप्यूटर, वाईफाई, इंटरनेट, और आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं, और चीजों को जो समझ आती हैं पढ़ने के बाद उसको अपने आने वाले दिनों पर, महीनों पर, हफ्तों पर, सालों पर डिक्लेयर करते हैं, इसको कहते हैं वेट। तो खुदा आपका वेट कर रहा है। असल में जो वेटिंग में जा रहे नहीं जाते, खुदा उनका वेट कर रहा है कि किस दिन वेटिंग रूम में आएगा। प्रेयर रूम, प्रेयर प्लेस, ऑल्टर आपका वेटिंग रूम है। जब आप अपनी ऑल्टर पर हैं, जब आप अपनी प्रेयर रूम में हैं, जब आप अपने प्रेयर क्लोजेट में हैं, तो वहां जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो आपका वेटिंग रूम है। और जब वेट कर रहे हैं, ऑलरेडी खुदा आपका वेट कर रहा है, तो जो वहां पर टाइम स्पेंड होगा उसे वेटिंग कहते हैं। आमीन। उसने कहा जो खुदावंद का इंतजार करेंगे क्या होगा? जोर पाएंगे। खुदा आपकी स्पिरिट, सोल, बॉडी को जोर देगा। अगर आप वीक फील कर रहे हैं तो डॉक्टर का वेट ना करें, दवाइयों का वेट ना करें, खुदा के हुजूर टाइम स्पेंड करें। आप देखेंगे आपका जोर, आपकी जवानी, आपकी ताकत, आपके पर औकाब की तरह नए होने वाले। औकाब खुदा का इंतजार करता है। एफाता चर्च, मेरी बात लिख लें, 2024 में जो लोग खुदा का वेट करेंगे ईगल की तरह फ्लाई करेंगे। हालेलुया। खुदा ने मुझे खुद एक ईगल की तरह दिखाया है। उसने कहा तुम अपने पर उखाड़ रहे हो, अपने पंजे तोड़ रहे हो, अपनी चोंच तोड़ रहे हो, नई चोंच आएगी, नए पंजे आएंगे, नए पर आएंगे, बुलंदी पर उड़ान होगी। तो लोग छोड़ कर गए हैं, डोंट वरी। हालेलुया। जो छोड़ कर गए हैं, जब लूत जुदा हुआ है, इब्राहिम को खुदा ने ब्लेस किया। हालेलुया। जब लूत जुदा हुआ है, इब्राहिम को खुदा ने ब्लेस किया। और जब उर्फा गई है, खुदा ने रूत को और नोमी को रिस्टोर किया है, और रूत को खुदा ने बोइस दिया है। जब लोग गए हैं, उनको किराया भी देने को बाय बाय, गुड बाय, जगह खाली कर। जगह खाली होगी तो कोई आएगा। मैं आपको कह रहा हूं, खुदा राइट लोग भेजने वाला है, खुदा लोडेड लोग भेजने वाला है, खुदा ब्लेस्ड लोग भेजने वाला है। जो कुर्सियां आप देख रहे हैं, खुदा नए लोगों को भेज रहा है। मार्क माय वर्ड डाउन, खुदा अमीर लोगों को भेजने वाला है, खुदा ब्लेस्ड लोगों को भेजने वाला है, खुदा कनेक्टेड लोगों को भेजने वाला है। आज जाकर अगर को फजूल टाइम करना भी है तो अपने मोबाइल पर यूज करें, डिलीट कर दें, ब्लॉक कर दें। कुछ लोगों को फेसबुक से, सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, कुछ लोग डिलीट ब्लॉक कर दें। फिनिश। आप देखेंगे जब जगह खाली छोड़ेंगे, जब आपकी फ्रेंड लिस्ट 4000 या 5000 लिमिट है, मुझे नहीं पता फेसबुक की कितनी लिमिट है, जब तक वो फ्रेंड लिस्ट डिलीट नहीं करेंगे, नए फ्रेंड नहीं ऐड होंगे। खुदा नए लोग भेज रहा है। तो असरे 9 जो पर आप गंदे पर हो गए, जिन पर खून लग गया, उकाब सारी जिंदगी शिकार करता है, लड़ता है, कुछ करता है, तो उसके पर क्या हो जाते हैं? उसके पर गंदे हो जाते हैं, उसके पैरों का रंग फीका पड़ जाता है, कुछ पर मुड़ जाते हैं। कुश्ती के दौरान, लड़ने के दौरान उसने लोमड़ी को पकड़ा, खरगोश को पकड़ा, बकरी को पकड़ लिया, हिरन को पकड़ा, उनके साथ लड़ाई करते हुए, उनको शिकार करते हुए उसके पर कुछ खराब हो गए, कुछ मुड़ गए, कुछ उल्टे पुल्टे हो गए, कुछ का रंग उड़ गया, कुछ झड़ गए। पर जब वो अपने कुछ साल पूरे कर लेता है,
जब ऑलमोस्ट वो 40 साल का हो जाता है, उकाब खुद बुलंदी पर चला जाता है, वो एक गार में छुप जाता है और वहां जाकर पहले अपनी चोंच से अपने पुराने पर उतारता है। वो बिल्कुल नंगा हो जाता है। जैसे मुर्गी छीलते हैं तो आपने देखा होगा छीली हुई मुर्गी कैसी लगती है, बिल्कुल नंगी हो जाती है। उसके वो अपने पर खुद उतारता है। पर उतारने के बाद वो अपने जो है चोंच को तोड़ता है, टकरे मारता है, फिर अपनी चोंच तोड़ता है, क्योंकि उसकी चोंच की जो शार्पनेस है वो भी कम हो जाती है। वो जो तेजी है, जो तेज होती है ब्लेड की तरह या तलवार की तरह, वो खत्म होती, चोंच तोड़ता है। जब चोंच तोड़ती है फिर वो अपने पंजे तोड़ता है, क्योंकि पंजों के अंदर की ताकत खत्म हो जाती है। तो फिर वो एक बेजान लोथड़े की तरह होता है। वहां इतनी बुलंदी पर वो इसलिए जाता है कि कोई सांप, कोई और जानवर उसका शिकार ना कर सके। वो पड़ा रहता है, खुदा के हुजूर इंतजार करता है कि मेरे पर निकले, मेरे पंजे निकले, मेरी चोंच निकले। तो खुदा इसीलिए ईमानदारों को उकाब से तशबीह दे रहा है। हालेलुया। जब आप वेट कर रहे हैं, उसकी हजूरी में लेटे हुए हैं, भले आपके पंजे नहीं है, भले आपकी चोंच नहीं है, भले आपके पर नहीं है, कोई जानवर आपका शिकार नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है जो हक ताला के पर्दे में रहता है कादिर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। तो समझे जो ईगल बर्ड है, ये होली बर्ड है। खुदा खुद को भी यशाया की किताब में ईगल से तशबीह दे रहा है और खुदा ईमानदारों को भी ईगल से तशबीह दे रहा है। तो ईगल होली बर्ड है, पाक परिंदा है। और खुदा जब वो एक लोथड़े की तरह पड़ा, पंजे नहीं है, चोंच नहीं है, पर नहीं है, समझे वो छिली हुई मुर्गी की तरह पड़ा हो, कुछ नहीं कर सकता, ना वो बाइट कर सकता है, ना वो पंजा मार सकता है, ना वो फ्लाई कर सकता है। तो वहां इतनी बुलंदी पर वो गार में इसलिए जाता है जहां कोई और जानवर उसका शिकार ना करे। तो वहां वो खुदा की हजूरी में होता है। उसके पर निकलते हैं, उसके पंजे निकलते हैं, उसकी चोंच निकलती है और उसकी उड़ान पहले से ज्यादा होती है। अगर आप 10 किलोमीटर पर उड़े हैं 2024 में, आप 33,000 फुट की बुलंदी पर। खुदा आपकी उड़ान को बुलंद करने वाला है। खुदा आपको मजीद जोरावर करने वाला है यीशु के नाम से। क्या है जो खुदावंद का इंतजार करेंगे। इंतजार कैसे करना है? खुदा के हुजूर नंगे हो जाए, उससे कोई बात ना छुपाएं, उकाब से सीखे। वो अपने पर खुद उतार देता है कि खुदा मैं तेरे हुजूर, ये मेरे अंदर खामी है, ये मेरे अंदर खूबियां हैं, तू इसको ठीक कर। तो वो उन खूबियों खामियों को ठीक करेगा। अगर आप खुदा के हुजूर भी बड़े पावरफुल और बड़े पाक और होली बन के जाएंगे, वो खुदा आपको कुछ नहीं कहेगा। वो क्या करेगा? मुनाफिक है, मुनाफिकत में ना जाएं, खुदा के हुजूर आजिज़ी में जाएं, हलीमी में जाएं और अपने आप को बिल्कुल नंगा करके जाएं। क्योंकि अगर आप कवर भी कर लेंगे, खुदा की आंखों से कोई चीज छुप नहीं सकती। ओके, आगे बढ़ेंगे। असरनो हासिल करेंगे, वो ख्वाबों के मानंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। आमीन। पर नहीं मिलेंगे, बालों पर से उड़ेंगे, मतलब कह रहा है कि उसके पर नहीं आ जाएंगे, टांगे पंजे नहीं होंगे, तो वो दौड़ेंगे, वो मानना पड़ेंगे। पुरानी टांगे जब ईगल की हो जाती है, वो थक जाती हैं, वो उसमें खम पड़ जाते हैं, उसके ऊपर अलग से गोश्त खून चिपट जाता है, तो उसकी टांगे जाम हो जाती हैं। हालेलुया। तो वो पंजे तोड़ के नई टांगे मिलती हैं, नए पर मिलते हैं। हालेलुया। खुदा ऐसे ही कुछ आपके लिए करने वाला है। मैं डिक्लेयर करता हूं 2024 हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। 2024 खुदावंद के कलाम को सुन। खुदावंद तो मुझे नया जोर देने वाला है। आमीन ना बोले, अपने लिए बोले, फिर उसके बाद आमीन बोले। पहले अपने लिए बोले। 2024 खुदावंद के कलाम को सुन, तो मुझे नया जोर देने वाला है, तो नहीं मुझे टांगे देने वाला है, तो मेरी टांगों को जोर देने वाला है, तो मेरी उड़ान को बढ़ाने वाला है, तो मेरी उड़ान को बुलंद करने वाला है, तो मेरी आई साइट को शार्प करने वाला है, तो मेरी जवानी को नया करने वाला है। यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ 2024 में स्ट्रेंथ मेरा पोर्शन हो, स्ट्रेंथ मेरी वाइफ का पोर्शन हो, मेरे बच्चों का पोर्शन, फैमिली का पोर्शन हो, यीशु के नाम से। आमीन। ये लिख लें, 24 प्रोमिसेस मैं बोलूंगा,
یہ 24 जनवरी तक डेली 1 घंटा लगाकर अपनी लाइफ पर बोले, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ओके, ये साया 40-29 पढ़िएगा। साया 40-29, साया 40। वो थके हुए को जोर बख्शता है। हम थक गए हैं, कुछ लोग वेली हो गए हैं, थक गए हैं लड़ाइयां कर करके, हालात से, गुर्बत से, कर्जे से, बीमारी से कुछ लोग अक जाते हैं। मैंने ऐसे इन दिनों में केसेस देखे हैं कि जो अस्पताल में बीमारी से लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं पास साहब हम दुआ करो मौत आ जाए, अम्मी मर जाए, अबू मर जाए। यो इवन उन पर स्पेंड करते हैं, खर्च करने वाले अपने मरीज पर खर्च कर करके थक जाते हैं। अब वो कहते हैं कि बस पर्दा पै जाए। 2-4 ऐसे केसेस साल के एंड होने से पहले ऐसे मेरे पास हैं, मजबूर हो गए बेचारे। तो यहाँ पर वादा क्या है ऐसे मजबूरों के लिए जो गुर्बत से लड़ लड़ के थक गए हैं और सुसाइड का सोच रहे हैं, या ऐसी बेटियां जो गुर्बत से लड़ लड़ के थक गई हैं और वो सोच रही है अब मैं प्रोस्टिट्यूट बन जाऊंगी, अब मैं कॉल गर्ल बन जाऊंगी, अब मैं जिस्म फरोशी करना शुरू कर दूंगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो गॉड फॉरबिड, खुदा माफ करे, खुदा कभी भी आपको बदी के रास्ते पर लेकर ना जाए। स्लो पढ़िएगा, क्या वादा है खुदा का, क्या वादा है? वो थके हुए को अगर आप थक चुके हैं क्या करेगा? जोर बख्शता है। क्या बचेगा? जोर। और नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। मैं डिक्लेयर करता हूं अपने 2024 पर जो भी थकावट मुझे 2023 में हुई है, खुदावंद तो मेरी थकावट को दूर करने वाला है, तो मुझे नया जोर देने वाला है। अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, हर तरह की टाइटनेस को ओवर करने वाला है, हर तरह की थकावट को दूर करने वाला है। और खुदावंद नया जोर, नई पावर, नया जज्बा, नया पैशन, नई स्ट्रेंथ तो मुझ में, मेरी फैमिली में डाउनलोड करने वाला है यीशु के नाम से। बोले आमीन। डिक्लेयर कर रहे हैं साथ साथ अपनी फैमिली को। ओके ओके ओके। यिर्मयाह 29:11, यिर्मयाह 29:11 2024 खुदावंद के कलाम को सुन। साथ साथ ये भी कहते हैं, क्या कहना है? 2024 खुदावंद के कलाम को सुन। ओके, क्या? क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। आमीन आमीन। खुदावंद के 2024 में आपकी हलाकत के ख्याल नहीं है। आमीन। कुछ लोग सोच रहे हैं if I thought the end हो गया, no, this is a new beginning. हालेलुया। कुछ लोग सोच रहे हैं आपका एंड हो गया, आप खत्म हो गए। नो, जहाँ एंड है वहीं बैंड है। आपके साथ वाले को कहने, बोले जहाँ एंड है वहीं बैंड है। हालेलुया। मेरे बारे में मैं डिक्लेयर करता हूँ 2024 खुदावंद के मेरे बारे में, मेरे बीवी बच्चों के बारे में अच्छे ख्यालात, मेरे जॉब के बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में, मेरी मिनिस्ट्री के बारे में खुदावंद के अच्छे ख्यालात हैं। मैं डिक्लेयर करता हूँ दुश्मनों के ख्यालात नहीं। आमीन। इधर सुनिएगा, ये डिक्लेयर करें, आपको समझ नहीं आई। कुछ लोग आपको कैलकुलेट करते हैं। आज कुछ लोग ओवर क्लेवर हैं, इतने वेले हैं, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, आपको कैलकुलेट कर रहे हो। अच्छा ये हो गया, ये नुकसान हो गया, ये फिनिश हो गया, ओ ये नुकसान हो गया, ये खत्म हो गया, ये चला गया, ये फिनिश हो गया, ओ ये छोड़ गया, ये फिनिश हो गया। नहीं, आप पर किसी की कैलकुलेशन नहीं चल सकती, उनका कैलकुलेटर फेल होगा। मेरे ऊपर से हर एक कैलकुलेटर फेल होगा, क्योंकि लोग मेरे खुदा नहीं है। अपने साथ वाले को कहे, पीपल आर नॉट माई गॉड। जब रूथ का हस्बैंड मर गया, इर्द गिर्द की लड़कियों ने, रिश्तेदारों ने, कजनों ने उस पर कैलकुलेशन की, रूथ खत्म हो गई। नोमी, इसका बेटा मर गया, ये खत्म हो गई। उनकी कैलकुलेशन शुरू हो गई। लोग आपके नुकसान पर हंसते हैं और आपकी कमियों पर वो दांत फाड़ते हैं, पर खुदावंद ऐसा नहीं है। खुदावंद क्या करने वाला है?
वो कह रहा है मैं तेरे बारे में अच्छे ख्याल रखता हूँ। इट मीन इसके अपोजिट क्या है? कलाम दो धारी तलवार है। इट मीन खुदा ऑलरेडी जानता है कुछ लोगों के आपके बारे में बुरे ख्याल हैं, कि इसकी शादी नहीं होगी, इसके बच्चे नहीं होंगे, ये ब्लेस नहीं होगा, ये कामयाब नहीं होगा। मैं कैंसल करता हूँ हर तरह के नेगेटिव वर्ड और नेगेटिव ख्यालात अपनी फैमिली से। यीशु के नाम से बोले, अपने लिए बोले, आप अपने लिए बोले, आप अपने लिए बोले। मैं कैंसल करता हूँ हर एक नेगेटिव सोच, हर एक नेगेटिव ख्याल, हर एक नेगेटिव वर्ड अपनी मिनिस्ट्री से, अपनी वाइफ से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपनी नस्ल से, अपनी जनरेशन से, अपने बुलावे से, अपनी लॉर्ड कॉलिंग से, अपनी मिनिस्ट्री से तमाम नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव सोचे, नेगेटिव ख्यालात मैं फेल करता हूँ, मैं कैंसिल करता हूँ और मैं डिक्लेयर करता हूँ खुदावन 2024 में तेरे पॉजिटिव ख्यालात हैं मेरी वाइफ पास्टर एना के लिए, मेरे बेटे मिनेस्टा के लिए, मेरी डॉटर मार्टिना क्रिस्टी के लिए, खुदावन मेरे लिए, एफाता चर्च पाकिस्तान के लिए, खुदावन मेरे बिजनेस के लिए, खुदावन तेरे 2024 में अच्छे ख्यालात हैं, लोगों के ख्यालात नहीं, रिश्तेदारों के ख्यालात नहीं, दोस्तों के ख्यालात नहीं, मेंबरों के ख्यालात नहीं, मुखालफों के ख्यालात नहीं, जसद करने वाले लोगों के ख्यालात नहीं, जादूगरों के ख्यालात नहीं, दुश्मनों के ख्यालात नहीं। तेरे ख्यालात पूरे हो, तेरे ख्यालात पूरे हो, तेरे ख्यालात पूरे हो यीशु के नाम से। अब बोले जोर से आमीन। अब जोरदार तालियां जा जो भी डिक्लेरेशन हुई मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझ आए कि जो चीजें, जो आयतें मैंने अलाइन की हैं, ऑर्डर की हैं, वो बहुत डीप है। आमीन। तो खुदावन के 2024 में मेरे लिए, आपके लिए बड़े अच्छे ख्याल। खुदावन चाह रहा है कि मैं नई गाड़ी ड्राइव करूं, आप नई गाड़ी ड्राइव करें, आप नया घर बाय करें, मैं नया घर बाय करूं, मैं अमेरिका, यूरोप, कनाडा जो मुल्क रह गए मैं वहां ट्रैवल करूं, पूरी फैमिली ट्रैवल करे, आप ट्रैवल करें, आप ब्लेस्ड हो, अपनी कंपनी स्टार्ट करो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, खुदा आपको ब्लेस करे, खुदा आपको प्रॉस्परस करे, मैं किंगडम का पिलर बनूं, किंगडम को स्पॉन्सर करूं, किंगडम को स्पॉन्सर करूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। खुदा राइट पीपल भेजे, खुदा हेल्पर भेजे, खुदा फेवर को इंक्रीज करे, खुदा उनके अच्छे ख्यालात पूरे हो, खुदा हर एक्सीडेंट से महफूज रखे, खुदा हर बीमारी से महफूज रखे, खुदा हर वायरस से महफूज रखे, खुदा हर एलर्जी से महफूज रखे, खुदा उन तंदुरुस्ती दे, खुदा उन थकावट दूर करे, खुदा उन नया जोर दे, खुदा उन नया पैशन दे, खुदा उन प्रॉस्पेरिटी दे, खुदा उन बरकतों से मालामाल करे, खुदा उन आपको ब्लेस करे, खुदा उन आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। हालेलुया। अपने साथ वाले को कह दें किसी के ख्याल नहीं, खुदा के ख्याल। बोले किसी के अल्फाज नहीं, खुदा उनके अल्फाज। कई बड़ी काली जुबान वालियां मारदियां ने माइयां, मैं देखिया मेरी बड़ी काली जुबान, मैं आख्या सी ऐ हो जाना, मैं उन काली जुबान को म्यूट कर देता हूं इससे पहले कि वो दोबारा बोले, मैं आख्या सी उन पर फालज हूं। समझ आ रही है? 2024 खुदा उनके इस कलाम को सुन। यशायाह 7:7, यशायाह 7:7। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं, उर्दू में नहीं समझ आएगी। लिखा है इट शैल नॉट स्टैंड, इट शैल नॉट कम टू पास। जो खुदा ने नहीं कहा नहीं होगा। क्या मैंने बोला? नहीं कहा, जो खुदावन ने नहीं कहा, लोकां दी गल्लां नहीं पूरी होणगियां, मैं क्या सी हो जाना है नहीं, मैं कैंसिल करता हूं किसी की जेलसी के अल्फाज मुझ पर, मेरी फैमिली बच्चों पर पूरे ना हो। I destroy the negative word. मैं हर एक नेगेटिव वर्ड अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपनी मिनिस्ट्री से, अपने बिजनेस से, हर एक नेगेटिव वर्ड को 2024 में एडवांस डिलीट कर देता हूँ, काट देता हूँ, जलाकर भस्म करता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। यशायाह 54:17, यशायाह 54:17।
हालेलुया। बरकत पा रहे हैं आप लोग? यस। कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा 2024 खुदावंद के कलाम को सुन। कोई हथियार 2024 में जो पास्टर क्रिस्टी या उसकी फैमिली के खिलाफ बनाया जाए, क्या लो काम ना आएगा। काम ना आए। और जो कोई तवीज, कोई नक्श, कोई मसरों की दाल, कोई जादू टूना, कोई नीले काले पेन से लिखे गए तवीज, हर एक वेपन जो मेरी फैमिली, मेरे बच्चों के खिलाफ बनी है, काम ना यीशु के नाम। आमीन। मैं फेल कर देता हूँ, आमीन। मैं फेल कर देता हूँ। और हर वो जुबान जो मंत्र जंतर, जादू टूना, कर्सिस, एन्चांटमेंट, इंकांटेशन कर रही है, लगातार पीछे, कमर के पीछे, मैं उनके अल्फाजों को मेरे फोरन पर भेजता हूं यीशु के नाम। आमीन के बाद में मारो बली। आमीन के बाद में मारो बली। तालियां बजाते हैं। 2024 उसी बात में बोले, खुदावंद के कलाम को सुन। अब अस्तिशना 31:8 पास रहना पड़ेगा। अस्तिशना 31:8 पास्टर फौजिया आप निकाल लें। ज़बूर 23 चौथी आयत। आप ज़बूर 23:4। और खुदावंद ही तेरे आगे में चलेगा, वो तेरे साथ रहेगा। खड़े हो जाए। खुदावंद मेरे आगे आगे चलेगा। चले अपनी जगह से बाहर निकल आए। बोले खुदावंद मेरे 2024 में 24 के सफर में खुदावंद मेरे आगे आगे चले, मेरी वाइफ के आगे आगे चले। जब मेरे बच्चे स्कूल जाएं 2024 में, खुदावंद के फरिश्ते उनके आगे आगे चले। जब हम घर से बाहर जाएं, खुदावंद के फरिश्ते हमारे आगे आगे चले। जब हम नौकरी पर जाएं, जब हम बिजनेस के लिए 2024 में, खुदावंद के फरिश्ते हमारे आगे आगे चले। इवन किसी हफ्ते में, किसी दिन में, किसी महीने में, किसी भी दिन, 365 दिनों में किसी भी दिन जब हम बाहर निकले, खुदावंद के फरिश्ते हमारे आगे आगे चले। आमीन। आमीन। आगे पढ़िएगा, आगे कंप्लीट करे पास करना। और खुदावंद ही तेरे आगे में चलेगा, वो तेरे साथ रहेगा, वो तुझसे दस खुदावंद मेरे साथ रहेगा। अगर लेडीज है साथ वाले का हाथ में हाथ डालें, हाथ में हाथ डालें। जैसे अपने पार्टनर के हाथ में हाथ डालें, मजबूती से पकड़ लें, ग्रिप कर लें आप। और अब एक कदम बढ़ाएं, मेरे आगे आगे चलेंगे, मुझसे जुदा ना होंगे, मुझसे दस्तबरदार ना होंगे। 2024 का सफर 2024 का सफर मेरे अकेला सफर नहीं है। मेरा अकेला सफर खुदावंद और उसके फरिश्ते मेरे आगे आगे, खुदावंद के फरिश्ते खुदावंद और उसके फरिश्ते मेरे साथ साथ। और खुदावंद के फरिश्ते मेरे दुश्मन मेरा साथ कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दुश्मन मेरा कुछ कोई रुकावट मुझे रोक नहीं कोई सकती, रुकावट मुझे कोई रोक बीमारी मुझे रोक नहीं कोई सकती, बीमारी कोई मुझे हादसा मुझे रोक नहीं सकता। कोई हादसा मुझे भले रोक आग से मैं गुजरूं। अगर मैं आपसे गुजरूं आगे अगली आयत देखते हैं, ये भी यहीं पर पास करना। और खुदावंद ही तेरे आगे आगे चलेगा। बोले 2024 2024 खुदावंद के कलाम को सुन। 2024 में खुदावंद मेरे आगे आगे चलेगा, खुदावंद मुझसे दस्तबरदार ना हो। आप पढ़िएगा, ठीक है। जब तू सैलाब में से गुजरेगा जब मैं सैलाबों में से गुजरूंगा जब मैं सलाखों से गुजरूंगा तो मैं तेरे साथ हूँगा। और खुदावंद मेरे साथ होगा, खुदावंद मेरे साथ हो सैलाब मुझे डुबोने ना पाएंगे। आप मुझे डुबोने न पाएंगे। मेरी कश्ती नूह की तरह मेरी कश्ती नूह की तरह सैलाबों पर तैरेगी। सलाखों पर जो तैरेगी। चीज दूसरों को डुबो रही है, जो चीज कश्ती जो दूसरों को चीज दूसरों के कारोबार को डुबो रही है, दूसरों के बिजनेस को डुबो रही है, मेरी पर वो चीज मेरी वो चीज मुझे बुलंदी पर लेकर जाए मुझे बुलंदियों पर लेकर जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। और जब तू नदियों को अबूर करेगा और जब मैं नदियों को अबूर करूंगा, अबूर करें, नदियां अबूर करें, नदियां। यस, ओके। तो वो तुझे ना डुबोएंगी। वो मुझे डुबोने ना पाएंगे। आगे जब तू आग पर चलेगा आग पर चले, आग पर चले, आग जब पर। आग पर चलेगा ओके, तो तुझे आँच ना लगेगी। आपको आंच ना लगेगी। आमीन। बोले कोई आंच नहीं आएगी, कोई आँच मेरे पाँव जलने नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। मेरे पाँव जलने नहीं पाएंगे। मेरे पाँव जलने नहीं जब पाएंगे। मैं आग पर चलूंगा, जब मैं आग पर चलूंगा जब मैं आग पर चलूंगा, जब मैं आग पर मेरे चलूंगा पाँव जलने नहीं पाएंगे। मेरे पाँव जलने नहीं पाएंगे। आगे बढ़े। और शोला तुझे ना जलाएगा। और शोला मुझे नहीं जलाएगा। और शोला मुझे नहीं जलाएगा। सदरक मीशक अब्दुलजू को दुश्मनों ने आग की भट्टी में डाल दिया, तो शोले ने उनको जलाया नहीं। जलाया। कोई भी शोला आपको जलाने ना पाए। आमीन। बैठे अपनी जगह पर। आप आग पर चल रहे हैं, आपको शोला नहीं जला रहा, आपका पाँव नहीं जल रहा, आप दरिया अबूर कर रहे हैं, और वो कह रहा है
बहुत के साया की वादी से मेरा गुजर हो। जो जगह दूसरों के लिए डेंजरस है आपके लिए नहीं है। जो जगह जो रास्ता किसी के लिए डेंजरस है आपके लिए नहीं है। खुदा आपके दुश्मनों को अंधा करने वाला है। खुदा आपके दुश्मनों को अंधा करने वाला है। 3 आयतों का पेड़ समझ आ रही है क्या है? 3 आयतों का पेड़ है। एक ही बात को एक पूरी स्टोरी बनी है। हालेलुया। ओके आगे पढ़ेंगे। रेडी हैं सब लोग? यस। ओके अगली आयत मैं बताता हूँ फिर हम उधर को चलेंगे। रेडी हैं? यस। ओके ज़बूर 37 उसकी 4थी आयत पढ़ेंगे। ज़बूर 37 उसकी 4थी आयत। खुदावन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। मुरादें कैसे पूरी होंगी? खुदावन मैं चाहता हूँ मुझे ये मिल जाए, खुदावन मैं चाहता हूँ मुझे वो मिल जाए। आपकी बड़ी मुरादें हैं, आपकी बड़ी डिजायर है, वो क्यों नहीं पूरी हो रही? क्योंकि आप खुदावन में खुश नहीं है। खुदावन में खुश नहीं है। खुदावन में खुश नहीं है। ये देख लें, आप हालात देख लें लेफ्ट राइट। जो खुदा में मसरूर होते हैं उनको ठंड नहीं रोक सकती। अभी हम कह रहे हैं नदियां तुझे रोक नहीं पाएंगी। अभी हम कह रहे हैं कि सैलाब तुझे रोक नहीं पाएंगे, आग तुझे रोक नहीं पाएगी, तो ठंड कैसे रोक सकती है? तो जो लोग खुदा में खुश हैं, जो लोग खुदावन में मसरूर हैं, उनके लिए सर्दी गर्मी कोई बात नहीं है। मैं अफ्रीका में देखता हूँ लोग वहां की कन्वेंशन में चेयर नहीं होती, लोग खड़े होकर इबादत करते हैं और उनकी 8-8 घंटे इबादत होती है। मैं अफ्रीका में देखता हूँ जब बारिश होती है लोग अम्ब्रेला लेकर स्टेडियम में बैठे हुए हैं, पूरे किले हो गए सब कुछ, और वो खुदा उनके नाम को जलाल दे रहे हैं। और इसीलिए वो लोग गुर्बत से निकलते आ रहे हैं और हमारे लोग अच्छे हालात से बुरे हालात की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप खुदावन में मसरूर नहीं है, खुदावन में खुश नहीं हो। दाऊद क्या कह रहा है इसके साथ ही जो इसका पेड़ आयत है? दाऊद क्या कह रहा है? मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दी छड़ी। कौन सा ज़बूर है? कौन सी आयत है? ज़बूर 122 की पहली आयत। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ खुदावन के घर चले। आप में से बतेरों ने कईयों को कॉल की होगी क्या है चलें आज की सर्विस स्टार्ट करें, तो इतनी ठंड है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं मुरादें उनकी पूरी होती हैं जो खुदावन में खुश है, जो खुदावन में मसरूर है। हालेलुया। जब आपको दावत मिले और आप खुशी से जाएं, जब आपको दावत मिले आप हर जगह जाएं। हालेलुया। हम खुश हो रहे थे पापा से कि उनको इस सीजन में बड़े प्रोग्रामों में मेहमान खुशी की दावत मिली, वो सर्दी में वहां बैठे हैं, वहां गए हैं। तो देखें, और रात कोई प्रेस्टिज का प्रोग्राम था, वो ठंड में वहां 2 बजे 3 बजे तक बैठे रहे, वर्शिप सुनते रहे। तो ये क्या है? ये खुदावन में मसरूरी है। इस तरह आप भी अपनी आदत बना लें, अपनी डायरी में नोट कर लें कि 2024 में भले सर्दी है, गर्मी है, सैलाब, पानी, आग मुझे रोकने ना पाए, और मैं खुशी से खुदावन के घर जाऊं, उनकी सताई करूं, उनकी हमद करूं, उनके चर्च में सफाई करूं, खुशी से आप ही से नहीं, आप किसी से नहीं। इस साल जो सबसे नए लोगों में से, पुराने लोग बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर नए लोगों में जो सबसे बेहतरीन होनहार बंदा हमें मिला है वो खुर्रम है। क्रिसमस वाले दिन आप सब क्रिसमस मना रहे थे, ये चर्च के अंदर ही चर्च की सफाई कर रहा है। रात को गया ये 10-11 बजे क्रिसमस वाले दिन, उसकी फैमिली थी, उसकी जिम्मेदारियां थी, मिलना था, उसके बावजूद वो खुदावंद के, मैं उसको कह रहा हूं उसका नहीं, मैं डैडी एक दफा चला जाए तो मैं आ जाऊंगा। वो जाकर 8-9 बजे फिर 10 बजे आ गया। वो उसने कहा कि सुबह सर्विस है और उसके बाद भी कोई सर्विस थी मेरे 24 वाले दिन, 25 को फिर ये इसने कहा कि सर्विस है तो मैं चर्च को तैयार करके जाऊंगा। तो खुदावन में, और फिर मिरेकल भी सुन ले, अब इसकी गवाही सुन ले। इसकी बीवी को यहाँ क्या आए थे, आगे आओ अपनी गवाही भी शेयर करो। क्या हम इसी के साथ प्रॉब्लम आई थी? गली में गिल्टियां थी, तो डॉक्टर ने कहा कि टीबी है। तो फिर दोबारा इधर आए पापा जी के पास, तो आप और मैंने क्या डायरेक्शन दी थी कि चर्च की सफाई करनी बस। और
बंदा, मैं माइक में इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी सोच से भी आगे उसने ताबेदारी में इवन क्रिसमस वाला 24 वाला दिन भी पूरा यहाँ चर्च में दे दिया। और क्या हुआ, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई सर्जरी नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, मैंने उसके बाद दोबारा दुआ नहीं की, बस मैंने डायरेक्शन दी है और उसके बाद यही सफाई करता है। और जब दोबारा चेकअप के लिए गए हैं, कितने दिनों के बाद दोबारा रीचेकअप करवाया था? 21 दिन के बाद इन्होंने चेकअप कराया और कुछ भी। हालेलुया। इस बंदे ने वाकई इन 2 महीनों में मुझे हैरान कर दिया, शॉकिंग। मैं खुश होया जदों मैनू कि आओ यहोवा दे। एक नाइजीरिया चर्च में एक नाबीना औरत थी और वो चर्च में पोछा लगाती थी और उसके साथ उसकी पोतरी थी। पोतरी क्या होती है? बेटे की बेटी। वो उसके साथ, वो बच्चे होते हैं, 5-6 साल की बच्ची थी, वो उसके साथ उसका हाथ पकड़ती थी, माँ जी इस तरफ, दादी जी इस तरफ, तो वो पोछा लगाती रहती, उसको बताती थी यहाँ मट्टी है या नहीं है बच्ची। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ और भी बच्चे चर्च में आए हुए थे, तो उनके साथ खेलने बाहर चली गई। तो उसका काम रुक गया, उसको आवाजें देती रही, आवाजें देती रही, आवाजें देती रही, आवाजें देती रही, वो नहीं है। वो रोई खुदा के सुनो कि खुदावन मैं तेरे चर्च की सफाई करती हूँ और मैं इसको बैसाखी नहीं बना सकती कि मुझे इसका असर और मैं तेरी सफाई करूँ। मैं अपना काम कंप्लीट करना चाहती हूँ, मेरी आंखें खोल दे। किसी पास्टर ने दुआ नहीं, किसी बंदे ने दुआ नहीं की, जैसे वो सफाई करे तो उसने खुदा को डिमांड की कि मेरी आंखें खोल दे, मैं तेरी सफाई करूँ। उसकी आंखें खोली। ऑल्टर की ये पावर है, इस ऑल्टर की इवन ये पावर है। इस 2023 का जो लास्ट मेजर मिरेकल हुआ है वो इसकी वाइफ है। और जब आप रिपोर्टें देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कल, मैं इसको कहूंगा रिपोर्टें लेकर, आप देखेंगे रिपोर्टें। एक दफा मेरा भी दिल हिल गया कि बड़ी लंबी चौड़ी दुआ करनी पड़ेगी, बहुत डिफिकल्ट काम। रिपोर्टें, स्कैन, रिपोर्टें, पता नहीं क्या क्या उन्होंने एलिगेशन लगा दिए। पर जब मैं वहां बैठा हुआ था, पाक रूह ने विस्पर की कि इसको कहो कि जस्ट सफाई करे, जस्ट सफाई करे। और ये इतनी, पता नहीं ये क्या काम करता है, वो भी मैं इससे पूछूंगा। और ये इतनी नीट सफाई करके जाता है चर्च की कि मैंने खवातीन की सफाई भी इतनी नीट नहीं देखी। इसके लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। मैं खुश होया जदों मैनू लगे कि आओ यहोवा दे। खुदावन में मसरूर है तो मैंने तेरी दिल की मुरादें पूरी कर। दुआ से दिल की मुरादें पूरी नहीं होती, दुआ से, हदिये से, रोजे से, सैक्रिफाइस से मुराद दिल की पूरी होती है जब आप खुदावन में मसरूर रहते हैं, खुशी से, शादमानी से। खुदावन में खुश हैं, खुदावन में स्पेंड करके, खुदावन में खर्च करके। इस सीजन में तकरीबन आप लोगों ने भी बहुत अच्छी सपोर्ट की, अपना अपना शेयर दिया। इस पूरे सीजन में हमारा 9.5 लाख रुपए लगा, इसमें से 2 लाख रुपए पास्टर एना ने खुदावन के चर्च काम के लिए दिए। खुदावन में मसरूर, ये लोग खुदावन में मसरूर है। सबसे पहले हदिया जो आया है ये इस फैमिली का आया है, बेटी फौजिया। और ये इन्होंने मुझे शॉक किया, इन्होंने भी मुझे शॉक किया। मेरे दिल में इनके लिए आया था कि इनको 15,000 गोल है, और ये एग्जैक्टली जब मैंने बोला इन्होंने क्या ऑलरेडी इन्वेल्व कर रहा हूँ, खुदा ने ऑलरेडी इनको बता दिया। तो जो लोग खुदावन में मसरूर हैं अपने देने में, अपनी खिदमत में, मैं आपको कह रहा हूँ कि उनकी कोई भी मुरादों के लिए दुआ की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ चीजों के लिए वर्शिप की जरूरत है। डिफरेंट चाबियां, हर चाबी हर जगह ना लगाएंगे, वो नहीं लगेगी। बाइबल को जब पढ़े उसमें ऑलरेडी मुकाशफा छुपा हुआ है। मुराद अगर दिल की पूरी करनी है, वो दुआ से नहीं होगी, वो रोजे से नहीं होगी, वो सैक्रिफाइस से नहीं होगी। वो क्या होगी? जब आप खुदावन में शादमान हैं, जब आप खुदावन में खुश हैं, तो आपके दिल की मुराद जो है आपकी पूरी होगी। इस सीजन में जो आपके दिल की मुराद आप चाहते हैं खुदावन पूरी करे, तो आप खुदावन में क्या हो? क्या हो? खुश हो। बोले मैं खुदावन में खुश हूँ। कितने लोग खुश हैं? खुदावन आपकी मुरादें पूरी करे।
खुदावन जो खुशी से देंगे, जो खुशी से खिदमत करेंगे, जो खुशी से चर्च आएंगे, जो खुशी से इबादत करेंगे, खुदावन उनको ब्लेस करेगा। आमीन। खुदावन में खुश रहने से। कैसे होगी? कितने लोग डिसाइड करते हैं कि मैं खुश होऊंगा? खुशी किस में कर सकते हैं? चर्च आने में। खुशी किस में कर सकते हैं? देने में। खुशी कैसे कर सकते हैं? काम करने में। इसने काम आवाज़ारी से नहीं किया, खुशी से किया। तो मिरेकल मैंने नहीं दिया, ऑलरेडी जो मिरेकल हुए वो मैं नहीं कर रहा, खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। खुदा ने मुझे गाइडलाइन दी, इनको कैसे सफाई करना है, दैट्स ऑल डन। और जब उन्होंने शादमानी से सफाई की है, खुदा ने मिरेकल कर दिया। तो ये मज़हबा आज भी, ये अल्टर आज भी क्या कर रही है? मौजज़े कर रही है। और ये इस साल का दी एंडिंग मिरेकल है। और रिपोर्टें जब मैंने देखी किताबे हयात की तरह, इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें, इतना बड़ा स्कैन, पता नहीं क्या क्या रिपोर्टें। मैंने कहा खुदावन साल का क्लोजिंग है, मैं क्या करूं? पाक उन्होंने मेरी मदद की, उसने कहा इसको कैसे पाई है। और ये शादमानी से लगाओ। आमीन। आमीन। मैं डिक्लेयर करता हूं, अगर आप बोर हो गए हैं खुदा से, मैंने जो वर्ड फील किया है, एफाता की बहुत सारी पुरानी फैमिलियां जिन्होंने खुदा को ठग लिया है, मैं ये कहूंगा उन्होंने खुदा को ठग लिया। बच्चे चाहिए थे मिल गए, नौकरी चाहिए थी मिल गई, घर चाहिए था मिल गया, अब उन्होंने खुदा को ठग लिया, अब वो खुदा से बोर हो गए। मैं नहीं बोल रहा, मुझे भी चाहिए। खुदा के पास हर लेवल के बाद एक अगला लेवल है। खुदा ने मुझे स्पोर्टेज दी है, अगली V8 होगी, नेक्स्ट रेंज रोवर होगी, उसके बाद खुदावन DHA में घर देगा, अमेरिका में घर देगा, कनाडा में घर देगा, खुदावन एक बड़ा स्टेडियम देगा, प्राइवेट जेट देगा। मैं खुदावन में बोर नहीं हुआ। आप बोर हो गए, जो लोग खुदा से बोर हो गए हैं, उन्होंने अपनी बरकत के डोर बंद कर लिए, उन्होंने बरकत के डोर बंद कर लिए। मैं नाम भी ले सकता हूँ फैमिलियां, मुझे उनके चेहरों से, उनके रवैयों से, उनकी हरकतों से पता है कि ये लोग अब खुदावन से बोर हो गए, थक गए। पर हमें उनके पीछे नहीं जाना, क्योंकि उन्होंने खुदा को टेस्ट कर लिया है कि ये बरकत देने वाला है। उनको नहीं चाहिए हमें जबरदस्ती नहीं देनी, किसी और को मौका देना है। नए लोग आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, नई बरकतें, नए मौजे, न्यू डायमेंशंस खुदा उनके लिए ओपन करने वाला है, उनके लिए ओपन करने वाला है। तो खिदमत से, भले आप कैमरामैन हैं, भले आप सफाई वाले हैं, भले आप वॉशरूम करने वाले हैं, भले आप कुछ भी काम करने वाले हैं, खिदमत खुशी से करें। लिखा है जो काम करो ये जानकर करो, ये आदमियों के लिए नहीं खुदावन के लिए करते हैं। तो जो शादमानी से कर रहे हैं कि खुदा मुझे देख रहा है, मैंने खुशी से करना है। देखें, मेरी अक्सर मुझे टोका जाता है लेफ्ट राइट से कि आप ना इतना मैसेज दें, ना इतना मैसेज दें, ये ना इतना कलाम दें। मैंने कहा नहीं, जो मुझे दिया है भले एक भी आए, मैं दयानतदारी से तमाम मुकाशफे उसके हैंड ओवर करूंगा। मैं अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन पूरी दयानतदारी से और खुशी से करता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा सीजन आया है कि मैंने पूरा मुकाशफा नहीं दिया, पूरा कलाम नहीं दिया। मैं खुदावन में खुशी से कलाम तैयार करता हूँ और खुशी से प्रेजेंट करता हूँ। खुदा उसी लिए मुझे ब्लेस कर रहा है। शादमान, हर तरह की बोरियत, जो खुदा से आप बोर हो गए हैं, थक गए हैं, वो भी बोरियत दूर हो। खुदा नेक्स्ट डायमेंशन आप पर ओपन करे, नेक्स्ट फेज आप पर ओपन करे, नेक्स्ट लेवल आप पर ओपन करे, यीशु के नाम से। बहुत सारे लोग बोर हो गए, आई नो दैट, ओके, पर खुदा आपको नया पैशन दे। लिखा है बस तू ख्याल कर तू कहां से गिरा है, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। हालेलुया। जब मियां बीवी की भी शादी होती है, पहले बड़े शोर में बर्गर ला के देता है, हाँ जी जानू क्या खाना है, अभी ऑर्डर किया, शोरमा आ गया, बर्गर आ गया। तो बाद में जब 2 साल गुजर जाते हैं, आटा पे रोटी का हाल है, मोहब्बत खत्म हो जाती। आप भी खा के भी खुआ शोरमा, रोज ही तेरा शोरमा, रोज ही तेरा बर्गर, तो मोहब्बत क्या हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। तो इसलिए यीशु मसीह भी उसने क्या दिया कलीसिया को कि बस तू ख्याल कर तू कहां से गिरा है, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका फर्स्ट लव ही रहे, आज भी आप अपनी बीवी को
क्वीन की तरह ट्रीट करे, वैलेंटाइन पर, मैरिज की एनिवर्सरी पर। इसी तरह जब आपका लव खुदा के लिए भी ऐसे है जैसे फर्स्ट डे था, हालेलुया, हालेलुया, तो आप देखेंगे खुदावंद आपके लिए क्या करने वाला है। खुदावंद खुदा आपको बरकतों से भला है। मैं डिक्लेयर, अपने दिल पर हाथ रखें। दिल की मुराद दिल से रिलेटेड है, मोहब्बत दिल से रिलेटेड है, खुशी दिल से काम नहीं कर रहे, बरकत नहीं है। तो दिल से जब लव करेंगे, दिल से जब देंगे, दिल से जब आएंगे, दिल से जब काम करेंगे, खुदा दिल की मुराद पूरी करेगा। आमीन। दिल पर हाथ रखा है, जब वो खुदा खुशी से तेरे हजूर आए, खुदावंद खुदा तेरे हजूर दें, तेरे हजूर काम करें, तो उनके दिल की मुरादें पूरी आमीन। मैं अपने महबूब को नींद ही में दे देता। फिर आप क्या बन जाते हैं खुदावंद के, आपको मांगने नहीं पड़ती, आपके दिल के अंदर होती है। दिल की बात आप किसी शेयर नहीं करते, पर उसने कहा कि मैं तेरा उठना बैठना जानता हूँ, मैं दूर से तेरे ख्यालात जान लेता हूँ। खुदा आपके दिल और गुर्दों को जानता और परखता और तोलता है। आमीन। तो दिल की मुरादें पूरी हो जाती हैं। ये बच्चे की मिसाल देख ले, जेलम से आया इतनी ठंड में, सुबह सुबह मैं उठा हूँ चर्च को देखने के लिए, दरवाजा ओपन करने के लिए, मोटर ऑन करने के लिए, ये पहले आकर बैठा हुआ। दिल, लोग मोहल्ले से नहीं आए, लोग गली से नहीं आए, लोग इलाके से नहीं आए, कोई जेलम से आ गए। जोरदार तालीम देंगे। तो अभी बहुत छोटा है, बच्चा है, पर मुझे नहीं पता क्या है, छोटी एज में खुदा पता नहीं कौन सी बरकतें ऑलरेडी इसके लिए एक्टिवेट कर रही है। तालियों की बात बीमारों वाली है, खुदा आपके लिए एक्टिवेट करने वाला है। हालेलुया। महबूब तब बनता है जब मोहब्बत होती है, जिससे आपका लव होता है, जो आपकी बिलावड होती है या जो आपका बिलावड होता है, उसे महबूब कहते हैं। तो महबूब की नींद में मिल जाता है, मतलब उसको एफर्ट नहीं करनी पड़ती, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको मजदूरी नहीं करनी पड़ती। जो महबूब होता है खुदा का, उसने कहा मैं अपने महबूब को नींद में ही दे देता हूँ। मैं डिक्लेयर करता हूँ 2024 में मैं और आप खुदावंद के महबूबों की लिस्ट में हो। बहुत सारे मैन ऑफ गॉड, बहुत सारे बिलीवर उसके महबूब हैं, तो हम उन महबूबों की लिस्ट में हो, महबूबों की लिस्ट में हो। हमारे दिल की मुरादें पूरी करे, खुदा ख्वाब में हमें दे, और आप और आपके इवन बच्चे भी महबूबों की लिस्ट में हो। हालेलुया। कहते हैं पंजाबी में कि सजना दी ते गली दा कुत्ता मारनी, उसको भी बिस्किट, डेयरी मिल्क के बिस्किट, कौन से वो बिस्किट, ओरियो, महंगे बिस्किट दे रहे होते हैं। महबूब की गली के कुत्ते की इतनी केयर कर रहे होते हैं। तो क्या क्या है, खुदावंद आपसे कनेक्टेड लोगों को भी ब्लेस करे। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूँ 2024 में आप खुदावंद के बिलावड हो। भले कोई आपको लव करे ना करे, कोई आपको लाइक करे ना करे, पर आप खुदावंद के महबूब। दाऊद के बारे में खुदा कह रहा है, दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। उसका बाप उसे लाइक नहीं करता, उसके भाई उसे लाइक नहीं कर रहे, उसके रिश्तेदार उसे लाइक नहीं कर रहे, पर खुदा कह रहा है कि दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। आप खुदावंद के दिल के मुआफिक बने यीशु के नाम से। आमीन। रेडी हैं सब लोग? अय्यूब 38 से 41 पढ़ेंगे पास्टर सोफिया के साथ, और दूसरा करंथियों 9:8 आयत पास्टर एना के साथ, दूसरा करंथियों 9:8 आयत पास्टर एना के साथ, अय्यूब 38 से 41 पास्टर सोफिया के साथ, और पहले फिलिपियों 4:9 पास्टर फोजिया के साथ, और फिलिपियों 4:6 पास्टर उस्मा के साथ। मैंने हवाला बोला है, आपके लिए बोला है फिलिपियों 4:9, पास्टर उस्मा के लिए बोला फिलिपियों 4:6, और पास्टर एना के लिए बोला है दूसरा करंथियों 9:8, और पास्टर सोफिया के लिए बोला है अय्यूब 38 से 41। जी पास्टर एना से शुरू करेंगे। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुम में हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे। आमीन। आज के दिन से खुदा तुम पर भी फजल कसरत से करे, आपके बच्चों पर फजल कसरत से हो। 2024 hear the word of the Lord। 2024 खुदा उनके कलाम को सुन। 2024 में मुझ पर, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों, मेरी कलीसिया पर
कसरत से फजल हो यीशु के नाम। अपने साथ बोले को के मोर ग्रेस, मोर ग्रेस। 7 दफा बोले, बोले मोर ग्रेस, बोले मोर ग्रेस, मोर ग्रेस, मोर ग्रेस, मोर ग्रेस, मोर ग्रेस, मोर ग्रेस। आज अपना मैसेज जब टाइप करें एंड पर बाय ना लिखें, क्या लिखें? मोर ग्रेस। जब आप मैसेज शुरू करें लिखें शालोम, जब मैसेज क्लोज करें बोले मोर ग्रेस। क्या लिखना है? मोर ग्रेस। आप पर ग्रेस इंक्रीज हो। ओके, आगे पढ़िए, स्लो स्लो पढ़िएगा आगे। नेक्स्ट। दाविदों को हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला। हर चीज, आटा, चीनी, दाल, कपड़े, पैसे, जूते, चमड़ा, जो कुछ आपको चाहिए, ताकि हर चीज तुम्हें कसरत से मिले। चीजें टाइट कब होती हैं? जब ग्रेस नहीं होती। तंग हालात क्यों होते हैं? जब ग्रेस नहीं होती। तो आज के दिन के बाद मैं डिक्लेयर करता हूं, जनवरी टू दिसंबर 2024 में हर चीज आपको कसरत से मिले। 2024 जनवरी मोर ग्रेस, मेरे सीधे पीछे। 2024 फरवरी मोर ग्रेस। 2024 मार्च मोर ग्रेस। 2024 अप्रैल, 2024 मई मोर ग्रेस। 2024 जून, एक बार बुलंद करके इकट्ठे 1 2 3 मोर ग्रेस। मई के बाद क्या है? जून। 2024 जून, 2024 जुलाई, 2024 अगस्त मोर ग्रेस। ओके, अगस्त के बाद मेरी बर्थडे का मंथ है 2024 सितंबर। दोनों हाथों से करें मोर ग्रेस, मोर ग्रेस, मोर ग्रेस। अगस्त मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ की बर्थडे का मंथ है। दोनों हाथों से 2024 अगस्त मोर ग्रेस। ताली बजा दी। और अगस्त सितंबर, अगस्त, अक्टूबर में कौन पैदा हुए हैं? ओके, 2024 अक्टूबर मोर ग्रेस, मोर ग्रेस, मोर ग्रेस। हालेलुया। ओके, आगे नेक्स्ट। नवंबर 2024 नवंबर मोर ग्रेस। क्यों आप मोर ग्रेस बोल रहे हैं? आयत में क्या वादा है? ताकि तुम्हें हर चीज कसरत से मिला। क्यों चीजें नहीं मिलती? ये मिल गया वो नहीं मिला, ये मिल गया वो नहीं मिला, ये मिल गया। आपने कोई कह रहे थे पैंट ले ली, शर्ट नहीं ली। क्रिसमस पर पैंट ले लिया, शर्ट पुरानी है, शर्ट ले ली, पैंट पुरानी है, पैंट शर्ट ले लिया, जूते पुराने हैं। नहीं, सारी चीजें मिल गई, ग्रेस नहीं है। जब ग्रेस होगी तुमको तमाम चीजें कसरत से मिला करेंगी। मैं डिक्लेयर करता हूँ, मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कलीसिया को तमाम चीजें कसरत से मिला। और ग्रेस आपके 2024 के दिसंबर मोर ग्रेस, मोर ग्रेस कसरत से मिला करें, ताकि आप अपनी चीजें दूसरों को भी शेयर करें। जूते इतने हो, कपड़े इतने हो, पैसे इतने हो, आप दूसरों को भी शेयर करें। हालेलुया। ओके, आपकी आई पास्टर उस्मा? मेरा फिलिपियों 4 की 6 है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की। अब ये भी एक वादा है, जब चीज आप प्रेजेंट कर रहे हैं, पिटीशन, कोई भी दरख्वास्त खुदा को दे रहे हैं, जब उसमें थैंक यू नहीं है, खुदा आपको गली देगा, बुड़बुड़ा, मुझे ये नहीं मिला, सानू तू खुदावन दिंदा नहीं, हमें साढ़े नाल ही इंज होंदा है। जब आप ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे, खुदा आपको नहीं देगा। शुक्र करें। अगर उसने पेंसिल दी है, अगर उसने टेंट दिया है, खुदा आपको, अगर उसने साइकिल दिया है, वो आपको शोरूम दे सकता है।
शुक्र गुजारी के साथ, थैंक यू के साथ अपनी पिटिशन प्रेजेंट करें, अपनी दरख्वास्त प्रेजेंट करें। तो 2024 में जो भी पिटिशन आप थैंक यू जीसस के साथ प्रेजेंट करें, खुदा आपको प्रोवाइड करे। आमीन। ओके, नेक्स्ट अय्यूब की आपकी है ना 38-41। ओके, आपकी फिलिपियो हाँ जी 4:9। 4:9 है। जो बातें तुमने मुझसे सीखी जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। खुदावन इत्मीनान का चश्मा, जब बातें जो सुनी है, सीखी हैं, उन पर अमल करोगे तो खुदावन इत्मीनान का चश्मा आपके साथ रहेगा। ओके, अय्यूब 38-41। ओके, पास्टर आप निकालिएगा ज़बूर 37-25। पहाड़ी कौवे के लिए कौन खुराक मुहैया करता है? दोबारा पहाड़ी कौवे के लिए कौन खुराक मुहैया करता है? जब उसके बच्चे खुदा से फरियाद करते और खुराक न मिलने से उठते फिरते हैं। आगे पूरी आए। क्या तू जानता है? क्या तू जानता है पहाड़ की जंगली बकरियां कब बच्चे देती हैं? या जब हरनियां ब्याती हैं तो क्या तू देख सकता है? तो उन महीनों को जिन्हें वो पूरा करती हैं गिन सकता है? या तुझे वो वक्त मालूम है जब वो बच्चे देती हैं, वो चूक जाती हैं, वो अपने बच्चे देती हैं और अपने दर्द से रिहाई पाती हैं। उनके बच्चे मोटे ताजा होते हैं, वो खुले मैदान में बढ़ते हैं। वो कर रहा है, उनको प्रोवाइड कर रहा है, उनकी सेफ्टी भी कर रहा है, उनकी प्रोटेक्शन भी कर रहा है। खुदा इवन उन जानवरों की डिलीवरी के वक्त भी उनकी नजर उनके ऊपर है। तो जरा सोचें कि क्यों खुदा आपकी केयर नहीं करेगा, जिसको उसने अपनी शबीह पर बनाया है, जिसकी खातिर उसने अपने बेटे को भेजा है। तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, खुदा हर हालात में, हर सिचुएशन में आपका मददगार हो यीशु में। ओके, ज़बूर 37-25 पास्टर हैना के साथ, ज़बूर 132-15 पास्टर उस्मा के साथ, और आखिरी ज़बूर 34-10 पास्टर फौजिया के साथ। मैं जवान था अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादों को बेबस और उसकी औलाद को टुकड़े बांटे नहीं। सब खड़े हो जाएंगे, आखिरी 3 आयतें और डिक्लेयर करेंगे। अपने बच्चों पर हाथ रख लें, अगर बच्चे आपके पास हैं, नहीं है तो दिल पर हाथ रख लें। मैं डिक्लेयर करता हूँ, आपके बच्चे कभी भी भीख ना मांगे। क्रिश्चियन वैसे भीख नहीं मांगते, पर खुदा ऐसे हालात न लेकर आए कि आपको कशकोल कटोरा उठाना पड़े। मैं कैंसल करता हूँ, इवन आपकी ब्लड लाइन से कभी आपको भीख मांगनी ना पड़े, कभी आपको खुदावन भिखारी ना बनाए, कभी भी आपकी स्टोरी गरीब लाजरस जैसी ना हो। खुदा आपको हर हालात में प्रोवाइड करे यीशु के नाम से। नेक्स्ट ज़बूर 15 है। मैं इसके रिज़्क में खूब बरकत दूंगा, मैं इसके गरीबों को रोटी से सैर करूंगा। आमीन। मैं इसके 14वीं आयत भी पढ़ ले ताकि समझो किसकी बात हो रही है। क्योंकि खुदावंद ने सिय्योन को चुना है, सिय्योन खुदा के घर को चर्च को कहते हैं। ओके, उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है, मैं यही रहूंगा क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है। मैं इसके रिज़्क में खूब बरकत दूंगा। यानी चर्च में आने वाले लोगों की बात हो रही है। यहाँ हर बिलीवर, हर क्रिश्चियन की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ उस ग्रुप की बात हो रही है जो चर्च में जाते हैं। मैं सिंगापुर में गया और वहाँ जब मैं पास्टर जोसेफ प्रिंस के चर्च में गया, सिंगापुर जैसे बिजी शहर में जहाँ छुट्टी नहीं है, वहाँ 6 स्टोरी चर्च था और 6 की 6 मंजिलें
लोगों से लगी हुई थी, भरे हुए थे। और सुबह 7 बजे लोग उधर, चाइनीज लोग, चाइनीज बुत परस्त थे, बुद्धा को मानने वाले थे। जब उन्होंने यीशु को कबूल किया तो सुबह 6 बजे वो चर्च है। और वो शहर खानेवाल शहर जितना है, पूरा मुल्क खानेवाल शहर जितना है, और उसकी इकोनॉमी एशिया में नंबर 1 है। इवन वो दुबई से 10 गुना आगे है। और खुदावन यीशु को मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो क्या है, उसने कहा कि मैं सिय्योन के लोगों के रिज़्क पर, ये खुदा का वादा है। जब आप चर्च आते हैं तो ज़बूर नंबर 132 की 15वीं आयत आपको पता हो, 13 से 15 आपको पता हो कि उसने लिखा है कि सिय्योन के लोगों के रिज़्क के ऊपर क्या होगा, क्या होगी, बरकत होगी। दोबारा पढ़ें। मैं इसके रिज़्क में खूब बरकत दूंगा, बरकत दूंगा। यानी खुदा आपके रिज़्क को, जब आप चर्च आ रहे हैं, ये चर्च आने की बरकत है। क्या, कौन सी बरकत है? चर्च आने की। और इसमें भी मैं गवाही बताऊंगा, ये बच्चियां जो है, ये क्या इनका नाम है, सारा और साइमा, ये ब्लेसिंग्स, ये बच्चियां जब से चर्च में आ रही हैं, इनकी सैलरी इंक्रीज हुई है, इनको बहुत सारे बोनस मिले हैं, बहुत सारी गवाहियां, बहुत सारे लिफाफे लेकर आती हैं। ये बच्चियां और भी काफी फैमिली है, मैं उनको मतलब हाईलाइट नहीं कर सकता, पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जिनका रिस्क जीरो था, जब खुदा के घर आना शुरू हुए हैं, तो ये वादा खुदा का, ये प्रॉमिस डिक्लेयर, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि जब आप अहद बांधें कि 2024 के अंदर एक भी सर्विस, भले सुबह और शाम और रात हो, मैंने छोड़नी नहीं, खुदा उतना ही ज्यादा इजाफा आपके रिज़्क में करे। एक आयत नोट करने वाली है, ये खुदा के मैं वादे डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं अपना वर्ड नहीं, अपना नॉलेज नहीं, बल्कि कलाम के लिखे हुए को डिक्लेयर कर रहा हूँ। आसमान जमीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें ना बढ़ेंगी, टलेगी। तो जो जो चर्च आ जाए हैं, आज आपने किस चीज में इजाफा किया? किसका फायदा किया? मेरा फायदा किया, अपना फायदा किया। जोरदार तालियां जाए। आपने अपने रिज़्क में इजाफा किया, आपकी रोटियां बढ़ गई हैं, आपकी इनकम बढ़ गई है, आपका पैसा बढ़ गया है, आपकी सैलरी बढ़ गई, आपने अपने रिस्क में इजाफा किया। और इसके अपोजिट क्या है, जो नहीं आ रहे वो क्या कर रहे हैं, वो अपने रिस्क में कमी कर रहे हैं, उनका रिस्क घट रहा है, उनका रिस्क कम हो रहा है। उनकी रिस्क कम होने के 2 मतलब है, बंदा जल्दी मर जाएगा और वो गुर्बत में मरेगा। जो चर्च नहीं आते और जो खुदा के हुजूर आते हैं, क्या हो रहा है, उनके रिज़्क में इजाफा हो रहा है, यादगारी का दफ्तर लगता है, और आपकी चीजें, आपके अमाल खुदा के हुजूर लिखे जाते हैं। लास्ट और फिर हम क्लोज करेंगे दुआ के साथ। हो गए 34 की 10। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं। शेर शिकार कर सकता है, उसके पास ताकत है, दहशत है, वो छीन सकता है। वो कह रहा है कि पॉसिबल है कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास दहशत है, जिसके पास जोर है, उसके बच्चे रात को भूखे सो जाए। पर खुदावंद के तालिब, जिसको खुदा की तलब है, ना हो। जैसे नशेई को शराब की तलब होती है, चर्च की तलब होती है, तो जो जिसको खुदा की तलब है, वो कभी क्या होंगे, किसी भी नेमत के मुहताज ना होंगे। तो इससे सीखने की बात क्या है कि आप तलबगार हो, खुदा के तालिब हो। जैसे तलब लगती है ना, कड़की लगती है, नशेई को वो चोरियां करता है, बहन के पैसे छीन लेता, भाइयों के घर की मोटर बेच दी, ये बेच दिया, उसने चर्च पीनी है, उसने शराब पीनी है, उसने पाउडर पीना है, उनको तलब लगी होती है। तो आपको तलब जब होगी खुदा की, वो कह रहा है आप किसी भी नेमत से मुहताज ना होंगे। कुछ चीजें दिल की मुरादें दुआ से नहीं होंगी, क्या होंगी, क्या होंगी, जब खुदा में खुश हो। तो हर एक जो जरूरत है, अगर खुदा के तलबगार बनेंगे, आप किसी भी नेमत के, जो बड़े बड़े लोग नेमतें एंजॉय कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, घर, जहाजों पर बैठना, ये नेमतें हैं सारी खुदा की, ये इंसानों के लिए बनी है, ये अमीरों के लिए नहीं बनी। तो आप किसी नेमत से मुहताज ना होंगे। कब खुदा के तालिब हो। अपने साथ वाले को के खुदा के तालिब हो बोले 2024 में
मैं खुदावन का तालिब हूँ, मुझे किसी नेमत की मोहताज नहीं, मेरे बच्चों को किसी नेमत की मोहताज नहीं, यीशु के नाम। हालेलुया। मैं आज ऑनेस्टली बताऊँ क्लोजिंग वर्ड्स के साथ, मेरी किसी ने कोई मदद नहीं की। किसी यहाँ बड़े बड़े अमीर लोग थे, रिश्तेदार भी थे, चर्च की सपोर्ट नहीं की, 3 साल छत नहीं डली, कोई मदद नहीं की किसी ने, किसी मेंबर ने। मेरा सीक्रेट ये है कि मैं खुदावन का तालिब हूँ, मैं खुदावन से प्यार करने वाला हूँ, मैं खुदावन में मसरूर रहने वाला हूँ। खुदा ने मशरिक मगरिब शिमाल जनूब से जब मैंने बोया भी नहीं था, खुदा ने वहां से भी मुझे फसल दिया। किसी के घर कोई चर्च के पीछे घर करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनके घर को पादरी आया, मेरा पुराना कोई दोस्त था, जानने वाला था, कहता पादरी ने चंदे चो गड्डी लै ली। वो 1 करोड़ की गाड़ी चंदे जो आती है, 15,000 रुपया, 8,000 रुपया, 7,000 रुपया चर्च का चंदा हो, महीने का कितना हो, तो बिल भी 15,000 है, 11,000 रुपए इस महीने में चर्च का बिल दिए, 11,000। तो बात ये है कि और सैलरियां दे रहे हैं कुछ लोगों को, काम पे हमने रखा, उनको पे करते हैं, तो चर्च कुछ भी नहीं कर रहा। अगर ये चल रहा है, सिर्फ एक ही सीक्रेट है कि मैं, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली खुदा के ताबे है, और जहां से खुदा प्रोवाइड कर रहा है वो लोग यहाँ नहीं है, और वो कोई गोरे नहीं, तो काले नहीं है, देसी लोग, उनके काम हुए, खुदा उनके जरिए प्रोवाइड कर रहा है। सीरियसली आप लोग नहीं है, आप लोग जस्ट ये समझ लें कि बिजली का बिल पूरा हो रहा है। ये वो मदद नहीं है कि मैं आपको गाड़ी ले लूं, या मैं अभी अपने 1,31,000 की चर्च के लिए मोटरसाइकिल ली है, पूरे महीने में 1,31,000 नहीं हुआ होगा, 9.5 लाख रुपए हमने इस महीने में लगाया चर्च के ऊपर। हालेलुया। तो बात ये है कि सीक्रेट मैं आपको दे रहा हूं, लोग आपके बैसाखियां नहीं होंगे, रिश्तेदार दोस्त नहीं होंगे, कौन होंगे? खुदावन में मसरूर है और खुदावन के तलबगार बन, जहां आपने सोचा भी नहीं है, खुदा वहां से भी आपको देगा। रात को मुझे कोई चंद मिनट के लिए मिलने आया, चंद मिनट के लिए, आपकी सोच नहीं कितना बड़ा तोहफा मुझे दे गई है। मैं आवाजारी कर रहा था, मैंने कहा मेरे ठंड है, कल 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 नए साल में मिलेंगे, उन्होंने कहा नहीं सिर्फ 1 मिनट के लिए, और मेरे लिए गिफ्ट लेकर और लिफाफा दिया, सलाम दिया। अरे चर्च के लिए मेरे लिए पर्सनल गिफ्ट मुझे देगा ये, तो मैं हैरान हो गया, मैंने लिफाफा खोला, मैं साइज देखकर ना, खुदावन तो मेहरबान है, तो खुदावन मुझे कहा ये आयतें मैं नोट करा, उसने कहा तू मेरा तलबगार है, तो मुझे भी मसरूर है, मैं तुझे और ब्लेस करने वाला हूं। लोग जेलस हो जाएंगे। क्लोजिंग में बताओ, मेरे एक रिश्तेदार मेरे पास आए, पास आने के पास कहने लगता है तुसी भी शराब बेचनी शुरू कर दी। सीरियसली, यानी लोग डाउट करेंगे आप कर क्या रहे हैं कि आप इतने ब्लेस हो रहे हैं, क्योंकि लोग आपको कैलकुलेट करते हैं कि इतने लोगों के 50 इसने दे दिया, 500 इसने दे दिया, 1000 लोग घर कॉपी पेन से लेकर मेरी इनकम काउंट कर रहे होते हैं। पर मैं बता दूं, मेरा चंदा गिन रहे होते हैं, ये चंदा मेरी सोर्स नहीं है, मेरा सोर्स मेरा खुदा है, मेरा सोर्स मेरा खुदा है, कहीं आए नहीं है और ना उन्होंने देने हैं। वो 2024 के हदिये को काउंट करें, कहा अच्छा 50 लोग देते पास्टर को 1 लाख रुपया हो जाएगा, आप उन्होंने 2000 हालेलुया, वो काउंट कर रहे हैं, वो काउंट भी कर लें, वो हैरान होंगे कि खुदावन मुझे कहां से ब्लेस कर रहा है। पर ये सीक्रेट मैं आपको ऊपर दे रहा हूं, कोई नहीं है, खुदावन में मसरूर है और खुदावन के तलबगार दे दे, वो अपने महबूब को नींद में दे दे। ऑनेस्टली जब मैं गाड़ी ले रहा था, मैंने मतलब पापा की स्टेटमेंट और भी बड़े लोगों की स्टेटमेंट मांगी, मेरे पास नहीं की, खुदा ने मुझे ब्लेस किया गाड़ी की, और हमने 2 साल में 8 साल की किस्तों पर ली, 2 साल में हमने क्लियर कर। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट क्या है? खुदावन में मसरूर है और खुदावन के तलबगार। आमीन, हालेलुया। साल जब क्लोजिंग हो रहा था, सिस्टर सनम ये भी तकरीबन कोई 20,000 के उन्होंने माइक की, मेरी वाइफ ने अकेला माइक ही मेरे लिए दिया, जो भी माइक है JBL का महंगा तरीन माइक, खुदावन के लिए गिफ्ट दिया।
हालेलुया। जब आप खुदावन के लिए बो रहे हैं ऑल्टर पर, खुदा आपको कभी भी तंगी आने नहीं देगा। भले ये हमारा घर ऊपर है या नीचे है, पर हम इसको ऑल्टर मानते हैं। हम जो चीज इस पर देते हैं वो खुदावन के लिए खर्च करते हैं, और जब हम खर्च करते हैं ध्यानदारी से, मैं आपको कह रहा हूँ हमारी बरकतें कंजूसी से बाहर आ जाए, हसद से बाहर आ जाए, जेलसी से बाहर आ जाए, और खुदावन के साथ जाए, तलबगार हो जाए, तलबगार हो जाए। गवाही सुनाइए बेटे खुरम की, नया मेंबर है बिल्कुल। रिपोर्टें मैं कल के दिन आपको दिखाऊंगा सर्विस में, आप रिपोर्टें देखेंगे, आपके भी अपने तोते उड़ जाएंगे, इतनी रिपोर्टें, और सब में प्रॉब्लम है। और उस बंदे ने 20 दिन दवाई नहीं ली, कोर्स नहीं किया, यहाँ सफाई की है, और ऑल्टर ने उसको हील कर दिया। ये मतलब नहीं है, इसमें लाइफ है, यहाँ खुदा की हजूरी है, खुदा के एंजल है, और यहाँ पर यीशु के नाम को, उसके कलाम को जलाल दिया जाता है। दोनों हाथ बुलंद करेंगे, दोनों हाथ बुलंद करेंगे, बोलेंगे आप यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर कर 2024 खुदा उनके कलाम को सुन। मैं और मेरा घराना बेकारी नहीं होंगे, ठीक नहीं मांगेंगे। 2024 खुदा उनके कलाम को सुन। हर तरह की सुस्ती, काहली, कमजोरी मुझसे, मेरी फैमिली से दूर होने वाली है। हर तरह की थकावट, रूहानी थकावट, बोरियत, रूहानी बोरियत मुझसे, मेरी फैमिली से दूर होने वाली है। हम पहली सी मोहब्बत बहाल करने वाले हैं, हम खुदा के तलबगार बनने वाले हैं, ताकि वादा मेरी जिंदगी में पूरा हो, मेरी फैमिली में पूरा हो। कि शेर के बच्चे भूखे और हाजतमंद रह सकते हैं, पर मेरे तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। खुदावन तेरे कलाम को मैं डिक्लेयर करता हूँ, खुदा मैं तेरा तलबगार हूँ। जो नेमतें मैं मुंह से बोलूं 2024 के लिए, मैं उस नेमत से मोहताज ना हूँ, मैं किसी रिश्तेदार का मोहताज ना हूँ। यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ 2024 पर, खुदा के कलाम को सुन, खुदा से मशहूर है, दिल की मुरादों को पूरा करो। जो मुरादें मैं डिक्लेयर करूँ 2024 में मेरी लाइफ में, खुदा तो पूरी यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मेरा घराना ब्लेस्ड हो। हर चीज हमें कसरत से मिले, हमारे रिस्क में इजाफा हो। जितने लॉस, जितने डैमेज, जितने धोखे माली तौर पर मेरी लाइफ में हुए हैं, 23 में हुए हैं, 24 में सब पूरे हो। मैं डिक्लेयर करता हूँ 2023 पर मैं कमांड करता हूँ, वॉमिट कर मेरे बोझों को, मेरी दौलत को, मेरी बरकतों को, और मैं रिसीव करूँ यीशु के नाम से। Clap your hand and pray, 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 hand and pray, clap your hand and pray, clap your hand and pray, clap your hand and pray. Rapa raste rogonde se, raka saka brande rogoto, lama rama se de rogoto, raka kala barande.